Last week we have started with the chapter alkanes and cycloalkanes. We have studied about hydrocarbons. There are two types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. Then saturated hydrocarbons are two, that is alkanes, which are non-ring compound, and cycloalkanes, which are ring compounds. And both the alkanes and cycloalkanes have only saturated bonds. That means all are single bond only. No multiple bond are there. And there is general formula we have seen. Then we have seen unsaturated hydrocarbons, that is alkenes, alkynes, and aromatic compounds, which are having multiple bonds, that is double bond or triple bond. Okay, so in this unit, we are going to study about alkanes and cycloalkanes. Then we have started about alkanes. They are all saturated hydrocarbons. That means all are having single carbon-carbon bond, and they are all open chain compounds. We have general formula CnH2n plus 2, where N is the number of carbons. जो भी अल्केन्स हम देखते हैं, whatever alkanes we see, it ends with ANE. Okay, the last it ends with ANE. जो ANE alkanes का होता है उसी के साथ ये फिनिश होता है, और उसके पहले जो प्रीफिक्स होता है, the prefix indicates the number of carbon atoms present. Okay, they are also called as paraffins. Paraffins इसलिए उसको बोला जाता है because they have very low affinity compound. Since they have no multiple bond, they have only single bonds, so it is very difficult for them to chemically react. Okay, they have a very low chemical reactivity. Easily वो chemically react नहीं करता है. Okay. Then we can see IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature are again divided in two categories, that is unbranched alkane and branched alkane. If we talk about just a branched alkane, then the unbranched alkanes are named in such a way that their name simply ends with ANE. ANE के साथ इसका नाम खत्म होता है. अगर ये हम देखेंगे कि all these are अनब्रांच्ड अल्केन, जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, स्ट्रेट चेन है सिर्फ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट एंड्स विद ANE. यू कैन सी ऑल द अल्केन्स एंड्स विद ANE, और इसके पहले जो होता है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स. ओके, so methane indicates there is only one carbon, ethane means two carbons, propane that means three carbons, then butane, pentane, hexane, heptane, such a way we proceed. Okay, so this prefix indicates the number of carbon present in the chain, and this ANE represents the alkanes. Okay, and if we talk about the branched alkane, like this is a branched alkane. इसमें क्या है, straight chain में जो सबसे longest chain है उसको हम देखते हैं. So this is the longest chain, that is chain with 3 carbons. So we consider this chain and we will name it as propane, क्योंकि इसमें 3 carbons है, and on the second carbon there is a methyl group attached, so we will name it as 2-methyl propane. Then in this carbon also, हम ऐसे देखें या ऐसे देखें, all are having equal. So ऐसे भी हमको 3 carbons दिखते हैं, ऐसे भी 3 carbons दिखते हैं. So if we consider this 1, 2 and 3 carbon, so it is again propane, but on the second carbon there is 2 methyl group attached, so 2,2-dimethyl propane we can written. So in this way we have seen all the names that are assigned. There are certain rules, that is first rule we have seen, the longest chain is considered. Then the second, the number of, suppose कोई attachment है, we have carbon 5 चेन का कार्बन है, उसमें सेकेंड नंबर पे एक CH3 अटैच है. तो द क्वेश्चन इज कि हमको किस तरफ किससे गिनना शुरू करना है. तो हमको उस तरफ से गिनना शुरू करना है जहां पे जो भी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. दैट मीन्स अगर सपोज हम लेफ्ट से गिनते हैं
तो हमको CH3 सेकेंड नंबर पे मिलता है, बट अगर हम राइट से गिनते हैं तो हमको फोर्थ नंबर पे मिलता है। तो हम राइट से नहीं गिनेंगे, हम लेफ्ट से गिनेंगे जहाँ पे CH3 हमको सेकेंड नंबर पे मिलता है। So we have to name them in such a way that this attachment should have the lowest order. So lowest number पे होना चाहिए, इस तरीके से हम ये करते हैं। तो ये जो नोमेनक्लेचर है दैट इज 2-methyl propane जो अभी हमने देखा, दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर। और अगर हम इसका जनरल नेम देखते हैं तो जनरल नेम इज आइसोब्यूटेन। आइसो मीन्स जहां पे कार्बन पे एक सिंगल ब्रांच है उसको हम आइसो नेम देते हैं। अगर इस पे डबल ब्रांच है तो हम नियो नेम देते हैं। ओके, सो बट द जनरल नेम कैन बी गिवन ओनली इफ वी हैव अप टू 4 कार्बन का अगर चेन है तो ही हम उसको नाम दे सकते हैं जनरल नेम। अगर उससे ऊपर होता है तो यूजुअली जनरल नेम में प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी आइसोब्यूटेन तो अब ये CH3 कौन सी जगह पे अटैच है, फर्स्ट पे अटैच है, सेकंड पे अटैच है या कहाँ पे अटैच है, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट लाइक आइसोब्यूटेन एंड नियोपेंटेन। ओके, so this general name are given only with the smaller alkanes, not with the larger one, but the standard name is IUPAC name which will be written like this only, 2-methyl propane। ये standard way है जिससे हम usually नाम इसको देते हैं। ओके, then we can see alkyl group हमने देखा, अभी general formula देखा। Okay, let us now we have categorized the carbons which are attached to this alkane into 4 different categories। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये जो कार्बन है ये कितने दूसरे कार्बन्स के साथ अटैच है, उसके हिसाब से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। सपोज दिस कार्बन इज अटैच with only one other carbon, then we name it as primary carbon. So we can see this carbon is attached with only one other carbon, so this is a primary carbon। Like this is also primary, this is also a primary carbon। Or if suppose this one carbon is attached with 2 different carbons, then we name it as secondary carbon। Like this carbon, we can see this is one carbon attached to it and this is another carbon attached to it। So if there is 2 carbons attached to the carbon, we will name it as secondary carbon, and if 3 carbons are attached to the carbon, that is named as tertiary। Like this, we have 3 different carbons attached to this carbon, so we name it as tertiary carbon। And if there are 4 groups attached to the carbon, we will name as quaternary carbon। Okay, so in this way we have divided the carbons into 4 different categories। So let us see the isomerism। We have already seen isomerism in the previous chapter। तो isomerism में हमने एक पढ़ा था, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। उसमें क्या होता है, एक जगह स्ट्रेट चेन होता है और एक जगह ब्रांच्ड चेन होता है। सो यू कैन सी आइसोमेर्स क्या होता है, व्हेन द molecular formula is same but the structure formula is different, that is called as isomers। So in this you can see there is the molecular formula in both the compounds are absolutely same but the structure is different। So we can say they are chain isomers because this is a straight chain and this is a branched chain। So straight chain is called as N-butane and the branched chain is called as isobutane। ठीक है, दिस इज अ थिंग टू रिमेम्बर। जब हम जनरल नेम देते हैं तो वी काउंट ऑल द कार्बन्स अटैच। जैसे इसमें 4 कार्बन्स है तो हम पूरे 4 कार्बन्स का जो ब्यूटेन है वो नाम देंगे। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन्स। ओके, तो 4 कार्बन्स तो हम ब्यूटेन देंगे, बट जब हम इसी को IUPAC नेम में देखते हैं तो वी विल से 2-methyl propane। ठीक है, हम इसको 2-methyl propane लिखते हैं, ना कि ब्यूटेन लिखते हैं। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। ये आप ब्यूटेन कहाँ पे लिखना है, और जनरल नेम में हम सारे कार्बन्स देखते हैं और IUPAC नेम में सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन देखते हैं। वैसे ही अगर आप पेंटेन में देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन, सो वी नेम इट एज N। This is a one branched single branched chain, so we name it as iso।
and this is quaternary carbon is there, so we name it as this neopentane. Okay, so again you can see in all the three compounds there is same molecular formula, that means number of carbons and number of hydrogens are same, but the structure is different. So there are different number of isomers depend upon the number of carbons attached in the compound. So as the number of carbon increases, the number of isomers also increases. As we can see, butane में two isomers होते हैं, pentane में 3 होते हैं, hexane have 5 isomers, then heptane is having 9 isomers, then decane is having 25 different isomers. It can have 25 isomers. So as the number of carbon increases, number of isomers also increases. So yesterday we have started with source of alkanes. Now source of alkanes हमने देखा था कि source of alkanes जो होता है, it depends upon ये जो होता है ये पूरा फॉसिल फ्यूल से निकलता है. अब फॉसिल फ्यूल यानी क्या होता है? फॉसिल यानी क्या होता है? कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज मीन बाय फॉसिल? फॉसिल मीन्स जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, दैट मीन्स बॉडी ऑफ मे बी ह्यूमन बीइंग, मे बी एनिमल, मे बी प्लांट्स, मे बी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग होता है, इनका जब बॉडी डिकम्पोज होता है तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, इट गोज अंडरग्राउंड. ये जो अंडरग्राउंड में जो डिकम्पोजिशन होता है, मे बी इन वाटर, मे बी इन लैंड, तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ये डिकम्पोज होके जो मटेरियल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल. ओके, अब ये जो फॉसिल फ्यूल हम इसलिए बोलते हैं फ्यूल क्योंकि ये जलता है, इसको जला सकते हैं, दैट इज कंबशन, कंबस्टेबल. That's why we known as fuel. इसको हम fuel बोलते हैं because that is combustible. Okay? But fossil मतलब जमीन के अंदर से निकलता है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से बनता है. तो ये जो होता है, जमीन के अंदर जो फॉसिल्स बनते जाते हैं, मे बी ईयर्स और मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कई सारा जो फॉसिल जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें अंदर डिकम्पोज होता है, वो कन्वर्ट होता है फॉसिल्स में. अब अंडरग्राउंड में क्या होता है, ये रिजर्वायर्स रॉक होते हैं, और ये जो रॉक होता है, आपको ये जो ऊपर वाला रॉक दिख रहा है, ये परमिवियस रॉक होता है. अब इसका मतलब ये होता है कि अंदर से कोई चीज इवेपोरेट होके या फ्लोट होके बाहर नहीं आती. दिस इज अ लैंड सरफेस, दिस इज अ ग्राउंड. ओके, ये ग्राउंड है. अब ये ग्राउंड पे इसमें ये जो रॉक्स है, ये इतना कड़क रॉक है कि इसमें से गैस या ऑयल बाहर नहीं आ सकता. ओके, तो हम अगर इसको डिग करते हैं, हम अगर इसमें गड्ढा खोदते हैं, व्हेन वी डिग दिस we can extract the amount of gas and oil which is present under the ground, जिसको हम पेट्रोलियम, जिस सिंपली हम तेल का कुआं बोलते हैं, है ना? सुना होगा आपने सिंपल नाम की, तेल का कुआं है, उसमें से तेल निकाला, पेट्रोल निकाला और सीधा गाड़ी में डाला. ऐसा होता है क्या? होता है क्या? कम ऑन आंसर. नहीं, हाँ, नहीं, क्या क्या करते हैं फिर उसको हम प्यूरिफाई करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो जो भी हम गैसेस होते हैं, फ्यूल गैस, जैसे आप घर में एलपीजी जलाते हो, एलपीजी गैस यूज करते हैं अपन सिलेंडर में. घर पे हम गैस में कौन सा ये यूज करते हैं फ्यूल, दैट इज एलपीजी गैस. ओके, जिसको लिक्विड फॉर्म में प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में भरते हैं, बट जब जैसे आप नॉब ऑन करते हो तो उसमें से गैस निकलता है. तो ये गैस कहाँ से आता है? दिस अगेन कम्स फ्रॉम दिस वेल. ये जो रिजर्वायर होता है, ये जो वेल होता है अंडरग्राउंड, इसमें से हम उस गैस को निकालते हैं. तो जब आप इसमें हम खोदते हैं, इसमें जब हम डिगिंग करते हैं, तो डिगिंग करने के बाद जो पहला स्टेप होता है, वहां पे गैस मिलता है, ऊपर हमको गैस मिलता है, और उसके नीचे होता है ऑयल का लेयर. तो हम पहले एक उसमें होल करते हैं, जिसमें से हम पूरा गैस निकालते जाते हैं, और दूसरे इसमें ऑयल निकालते जाते हैं. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ये जैसे जैसे हम इसमें निकालते जाते हैं, वैसे ही जो रिजर्वायर होता है,
इसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट बनते जाता है। ओके, तो ये जो गैस और ऑयल है इसमें से हम अंडरग्राउंड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो गैस और ऑयल होता है दिस इज राइट फ्रॉम C1 टू C40। अब C1 क्या है? C1 मतलब अल्केन्स विथ नंबर ऑफ कार्बन 1। ठीक है, अब ऐसा कौन सा अल्केन है जिसमें 1 नंबर ऑफ कार्बन होता है? कम ऑन क्विकली आंसर। मीथेन, है ना? मीथेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन होता है? 1। देन 2 नंबर ऑफ कार्बन आर देयर इन ईथेन, 3 नंबर are of carbon are in propane, and 4 number of carbons are in butane. So simply while this extraction term जो simple term होता है उसमें हम C1 to C4 नाम देते हैं। तो ये C1 to C4 क्या है? That is number of carbon present in the compound. ओके, सो अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन C1 to C4 है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये जो हम गैस निकालते हैं दिस गैस इज अ मिक्सचर ऑफ C1 to C4। दैट इज यू कैन सी दिस इज अ नेचुरल गैस व्हिच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस। ये जो गैस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल गैस। इसको हम नेचुरल गैस नाम देते हैं। और जो हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इस ऑयल को हम नाम देते हैं पेट्रोलियम। ओके, इसको हम पेट्रोलियम लिक्विड नाम देते हैं। अब ये जो गैस है दिस इज कंसिस्ट ऑफ 4 alkanes, that is methane, ethane, propane and butane. You can see the number of composition over there. इसका जो composition होता है मीथेन almost 70 to 90% होता है, इथेन 0 to 20%, प्रोपेन, ब्यूटेन ये जो अलग अलग जगह की गैसेस होती है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें दिस कंपोजिशन कैन वेरी। ठीक है, किसी में मीथेन ज्यादा होता है, किसी में प्रोपेन, किसी में इथेन। ये जो कंपोजिशन होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वायर्स। ओके, ये रिजर्वायर्स में अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो दिस इज अ जनरल कंपोजिशन वी कैन सी विच इज प्रेजेंट इन दिस नेचुरल गैस। तो यही जो गैस होती है इसी से हम LPG बनाते हैं, CNG बनाते हैं, जिससे गाड़ियां चलती है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज CNG गैस। एंड जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, घर में कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज LPG। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे बाद में कि ये इसका कंपोजिशन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LPG क्या होता है और CNG क्या होता है। ओके, सो अब ये क्या होता है, these alkanes are main source of alkanes जो होता है these are petroleum and natural gases which are found in the crust of earth crust में ये मिलता है। ओके, अब ये बनता कैसे है, जैसे कि मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जो भी they are formed at high temperature and pressure and under anaerobic condition from plants and organisms that are buried a long time back। मतलब जो जमीन के अंदर प्लांट का डिपॉजिट हो जाता है, एनिमल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सो दीज आर द नेचुरल गैसेस। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये जो ऑयल होता है विच इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब सिंपल जो क्रूड ऑयल होता है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ C5 to C40। अब हमने देखा था पूरा C1 से C40 तक हमको मिलता है जमीन के अंदर से, बट जो C1 से C4 तक होता है दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। इसके बाद के जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं अप टू 15। ठीक है, ये जो होते हैं ये ऑलमोस्ट अप टू 15 और 17 तक जो होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं। और उसके बाद जो ऊपर के होते हैं जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं दे आर ये जो रेसिड्यूज होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जब हम ये ऑयल निकालते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ C5 to C40। इसमें से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ते जाता है। इसलिए C1 जो बहुत छोटा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो हम देखेंगे कि लाइट जो पेट्रोल निकलता है 5 to 7 दैट इज C5 to C7 दिस इज यूज एज सॉल्वेंट। हम इसको बहुत सारे सिंथेसिस में सॉल्वेंट करके यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज लाइट पेट्रोलियम।
अब ये जो पेट्रोलियम ईथर होता है इसको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ईथर। देन उसके बाद जो होता है C6 to C11, इसको हम मोटर फ्यूल, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है, ये पेट्रोल की तरीके से हम गाड़ियों में यूज करते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है केरोसिन, जिसको हम पैराफिन ऑयल बोलते हैं। और ये जो होता है हैवी ऑयल, इसको हम बोलते हैं डीजल, ठीक है, दैट मीन्स। और इसके बाद जो होता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल, आप गाड़ी में ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, कोई भी मशीन चलाते हैं तो उसमें ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है, तो ये जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है, दिस इज ऑल्सो अल्केन विच इज C16 to C20। अब उसके बाद के जो होते हैं ग्रीस, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं दे आर C18 to C22। उसके बाद होता है पैराफिन वैक्स, जिससे हम कैंडल्स जलाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, और वैक्स्ड पेपर बनाते हैं, पेपर पे जो वैक्स कोटिंग करते हैं, तो ये जो वैक्स होता है दिस इज C20 to 30। और उसके बाद जो रेसिड्यू बनता है, जो तार बचता है, इससे हम रोड्स बनाते हैं। जो आपका डामर का रोड होता है ना, तो ये जो डामर होता है ये कहाँ से आता है, ये इसमें से जो बचा हुआ सॉलिड मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं डामर, ठीक है, जिससे हम रोड्स बनाते हैं। ये सारी चीजें आपने देखा होगा, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये पूरी ग्राउंड के अंदर से निकलती है। ये सारे फ्यूल्स और ये सारी चीजें जो आपने अभी तक देखी होगी, सुनी होगी, पर शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। आपको पता था अभी तक, सुना था आप लोगों ने ये सब, ये सारी चीजें जमीन के अंदर से निकलती है? यस, स्पीक आउट। पेट्रोल का पता था, बाकी सबका नहीं पता था, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें जो होती है, ये सारे अल्केन्स होते हैं जो हम अंडरग्राउंड से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द ऑयल, ये सारे ऑयल का मिक्सचर है। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, कि ये तो है पर इसके हिसाब से हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ते जाता है, तो ऑब्वियसली अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो लो बॉइलिंग पॉइंट पे ये निकल जाएगा, फिर उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे ये निकल जाएगा, फिर जब हम उसको उससे ज्यादा बॉईल करेंगे तो ये थर्ड वाला निकल जाएगा, फिर फोर्थ। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट करते हैं। तो ये जो सेपरेशन प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि आपको समझने में काम आएगा। यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर सिलेबस, इतना डेप्थ में आपको सिलेबस में नहीं है, इट्स ओनली जस्ट द टेक्स्ट। बट वो टेक्स्ट तब तक नहीं समझता है जब आप उसको प्रॉपर डायग्रामेटिक नहीं देखते हो, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू टू जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, ओके, हैव यू? ओके, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। This is good for your knowledge, as well as this is good for maybe some questions may be asked from this, so you are able to answer, okay। So fractional distillation में हम according to boiling point इसको separate out कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको heat करते हैं, ये crude oil को पूरा up to 600 more than 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ चले जाता है, ठीक है, ये हल्का जो होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये कूल होते जाता है, कूलिंग होते जाता है इसमें, और इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर ये और ऊपर जा रहा है तो इसका टेम्परेचर और कम, ये जो है इसमें से ये ऑयल या जो है ये बह के ऊपर चले जाता है, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर कम होते जाता है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, पहले हम इसको ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट होता है, ये निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, फिर जो एविएशन पेट्रोल होता है वो निकलता है, केरोसिन एंड पैराफिन ऑयल्स। देन उसके बाद जो भी डीजल होता है डीजल निकलता है, फिर जो भी ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, देन इंडस्ट्रियल फ्यूल, देन ये देखो आप रोड का डायग्राम दिखाया, बिकॉज
इट्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये सब जो है इस तरीके से डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिससे इसको हम सेपरेट आउट करते हैं। तो ऑल द अल्केन्स राइट फ्रॉम C1 to C40 are separated by the fractional distillation, and we can use it in various purpose. So let us see now the preparations of alkenes. अब इसको prepare कैसे करते हैं? If I have to synthesize this alkane in laboratory, then how could I synthesize this? अभी तो हमने extraction देखा कि इसको निकालते कहाँ से है, extract कैसे करते हैं. But if I have some other compounds having alkyl group, how would I convert it into simple alkenes? So the first process is hydrogenation of alkenes and alkynes. Alkenes are those having double bond and alkynes are those having triple bonds. तो हम इसको अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन से हम इसको हाइड्रोजन जब हम इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, we can get the alkenes. ठीक है, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो obviously this double bond or triple bond will be converted into single bond and we can get the alkenes in this process. Okay, so this is the first method. Then the second method is Wurtz reaction. Now the Wurtz reaction is that reaction in which this alkyl halides is converted into alkenes by the process of सोडियम मेटल. इसमें सोडियम मेटल एज ए कैटलिस्ट हम डालते हैं. सोडियम मेटल प्लस हम इसमें ड्राई ईथर के सॉल्वेंट में सॉल्वेंट हम लेते हैं ड्राई ईथर, और इसमें जब हम अल्किल हैलाइड डालते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू अल्केन्स. सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शन वी हैव कन्वर्टेड दिस. This is a general formula of alkyl halide. This is the example, that is methyl iodide is converted into ethane. Then ethyl bromide, ये इथिल ग्रुप है और ये ब्रोमीन है. जो ब्रोमीन है इट अटैच टू दिस सोडियम एंड वी कैन गेट दिस टू. ये जो टू इथिल ग्रुप है ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये ब्यूटेन फॉर्म करता है. दैट मीन्स इट गेट्स डबल. ठीक है, तो ये जो वुर्त्ज रिएक्शन रहते हैं इसमें जो भी हम अल्किल लेते हैं दैट गेट्स डबल, उसका डबल वाला अल्केन बनता है. अगर मिथिल लेते हैं तो इथिल बनता है. अगर हम सपोज इथिल लेते हैं तो ब्यूटेन बनता है. तो जो भी हम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप लेते हैं उसका डबल वाला हमको मिलता है. एंड वी कैन फॉर्म ओनली सिमेट्रिक जो रहता है, सिमेट्रिक हम अल्केन्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं. अगेन कोलबेस रिएक्शन में भी सेम होता है. वी टेक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगेन दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस सोडियम एंड CH3CO ग्रुप गेट्स एक्सट्रैक्टेड. और उसको जब हम एनोड पे डिस्चार्ज करके डीकम्पोज करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वी कैन गेट द हायर अल्केन. अब यहाँ पे भी जो पार्ट होता है ये डबल हो जाता है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, दो अल्किल ग्रुप जुड़ के एक अल्केन फॉर्म कर लेते हैं. सपोज दिस इज वन कार्बन देन वी गेट अल्केन ऑफ टू कार्बन्स. सपोज टू कार्बन्स का है तो वी गेट 4 कार्बन्स, 3 का है तो 6. सो इस तरीके से हम इसमें भी सिमेट्रिक अल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कोलबेस रिएक्शन. Then the fourth process is decarboxylation of carboxylic acid. Now, in carboxylation of carboxylic acid, again we can see this is decarboxylation process हम करते हैं. This is sodium salt of removal of, इसमें carboxylic acid remove होता है. पहले सोडियम हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये COONA gets react with this लाइम सोडा. हम इसमें लाइम सोडा ऐड करते हैं. जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है इसमें हम लाइम सोडा ऐड करते हैं. लाइम सोडा इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH and CaO. When we heat this mixture we get these alkane. Okay, you can see the example.
This is sodium acetate, example of sodium acetate. This converts into methane. This is sodium propionate, which converts into ethane. Okay, so this is how carboxylic acid of decarboxylation. Then we can see the reduction of alkyl halides. अब ये जो alkyl halides होते हैं, alkyl halides को हम reduce कर सकते हैं. That means this X, जो भी X होता है, जो भी मतलब chlorine, chlorine, bromine, iodine, whatever X is there, तो जो भी 7 ग्रुप जो एलिमेंट होता है, ये जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं, ये हैलाइड्स गेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोजन एंड दिस हैलाइड्स गेट अटैच्ड विद वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स एसिड. ये एसिड फॉर्म करता है और ये जो रहता है ये अल्कीन फॉर्म कर लेता है. सो वी कैन सी द एग्जांपल. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ methyl iodide. One of the hydrogen get attached with this methyl group and one of the hydrogen get attached with this iodine, and it forms methane and HI. Then again we can see the example of ethyl bromide. Then one hydrogen get attached with ethyl and one hydrogen get attached with the bromine group. So we can form the ethane by this method. So this is the reduction of alkyl halides. Then we can also form alkanes by Grignard's reagent. We can see Grignard's reagent is RMgX, where R is any alkane. Okay, R could be any alkane and X could be any halides. So if I take a general reaction, this Grignard's reagent when attached to water, what it do? इसका जो वाटर का H होता है, इट अटैच टू दिस R ग्रुप. ये अल्किल जो होता है इसमें अटैच हो जाता है और OH जो है वो Mg के साथ अटैच हो जाता है. तो हम देख सकते हैं ये RH फॉर्म कर लिया और OH जो है वाटर का बचा हुआ वो Mg के साथ फॉर्म कर लिया. सो अगेन वी कैन गेट दीज अल्केन्स. दिस इज an example of methyl magnesium bromide. In methyl magnesium bromide, again this H attached with H plus of this water attached with CH3 and OH attached with this Mg. Okay, so methane could be formed by this method. Then the seventh method and the last method is aldehydes and ketones. From aldehydes and ketones it can be formed, and this reaction is named as Clemmensen reaction, Clemmensen reduction. So this aldehyde could be reduced by some reagents, that is reducing agents are used in the presence of acids and zinc amalgam. So you can see this ये जो है ग्रुप, इसमें यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये जो CH3 होता है, 2 molecules of CH3 gets attached to each other to form this ये जो एक O डबल बॉन्ड O होता है, ये डबल बॉन्ड O ब्रेकआउट हो जाता है और ये एक हाइड्रोजन फॉर्म कर, हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन्स गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन and 2 other hydrogens gets attached to this oxygen to form a water molecule. Okay, so in this way you can see this ethane is formed. Let us see the example of acetone. In acetone you can see this is a molecule of acetone. इसमें ये जो डबल बॉन्ड O होता है ये ब्रेक हो जाता है और 2 हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो इसमें अटैच हो जाते हैं. So this is a reduction process in which we are using amalgam, zinc amalgam as reducing agent and in the presence of acid, and this propane can be formed from this. Okay, then we can see the physical property of alkanes. There are अब ये जो अल्केन्स होता है इसका बहुत सारा यूज हमने देखा कि दिस कुड बी यूज फॉर LPG, CNG, then many fuels, petrol, diesels. Basically what it is a colorless and odorless material. इसमें ज्यादा कलर नहीं होता है. मैक्सिमम जो इसके अल्केन्स होते हैं they are colorless and odorless materials, and alkenes are less dense than water. वाटर से कम डेंस होता है, इसलिए ये जो ऑयल होता है आप देखो कि जब वाटर सरफेस पे हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल ऊपर तैरने लग जाता है. तो जो भी क्रूड ऑयल होता है जिसको हम पहले मट्टी का तेल बोलते थे, है ना, केरोसिन ऑयल में भी सेड एज क्रूड ऑयल,
या हम इसको भी पहले जो क्रूड ऑयल होता था, कच्चा तेल, इसको मट्टी का तेल भी बोलते थे, बिकॉज इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, आपने पहले अपने फादर से सुना होगा, पेरेंट्स वगैरह से, कि पहले मट्टी के तेल से घर पे खाना बनता था जब गैसेस नहीं होते थे। तो दिस इज नथिंग बट अ ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस लैंड। ये क्रूड ऑयल होता था, जो केरोसिन वगैरह जो बच जाता था, दैट इज, और मे बी द कंप्लीट क्रूड ऑयल इज यूज्ड फॉर कंबशन। तो ये जो होता था, इट इज लाइटर देन वाटर, दैट्स व्हाई दिस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर. So alkanes are non-polar materials. Obviously, they are non-polar materials. They are organic materials. That's why they are not soluble in water. तो ये non-polar इसमें non-polar होता है, इसलिए ये non-polar solvent में ही सिर्फ dissolve होता है. जैसे कि organic solvents जो होते हैं, they are mainly some of the organic solvents are non-polar in nature. So ये organic solvents में dissolve होता है. ये water या polar solvents में dissolve नहीं होता. It is insoluble in polar solvents. And as we have seen, the melting point and boiling point increases as the number of carbons increases. जैसे जैसे compound में number of carbon increase होता है, melting point and boiling point also increases. Thus, C1 to C4 are gases and C5 to C15 are liquids, while the higher ones are solid in nature. Then let us see the chemical reactions. Some of the chemical reaction we can see. This is halogenation reaction, in which simply we attach this with the chlorine in presence of ultraviolet light. Sunlight में जब हम इसको attach करते हैं, chlorinate करते हैं, तो it converts into methyl chloride. And one acid is formed along with this. And you can see the example, methyl chloride का example देख सकते हैं हम. Methyl chloride converts into methylene chloride, and then methylene chloride जो होता है, this is convert into chloroform. मतलब एक एक जो क्लोरीन होता है इसमें अटैच होते जाता है. ठीक है, जब हमने इसको यूवी लाइट में रखा तो वन क्लोरीन गेट्स अटैच टू मीथेन, तो ये मिथिल क्लोराइड बन गया. फिर उसके बाद इसको, इसमें हम कंटिन्यूसली अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल देंगे तो इट कंटिन्यूसली कन्वर्ट इनटू क्लोराइड. जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक एक करके क्लोरीन के साथ रिप्लेस होते जाते हैं. पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, देन सेकेंड हाइड्रोजन, देन थर्ड हाइड्रोजन, देन ऑल द फोर हाइड्रोजन्स गेट रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एंड कार्बन टेट्रा chloride is formed. Okay, so the second reaction is nitration reaction. हम इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं या नाइट्रिक एसिड डालते हैं जब, तो it converts into nitromethane. That means nitro group, one hydrogen is replaced by this nitro group. Okay, so this is a nitration process in which we heat it at around 400 to 500 degrees Celsius. Then again, this is a sulfonation reaction in which we convert this alkanes into sulfonic group. Okay, so one of the hydrogen gets replaced with sulfonic group and it forms a hexane sulfonic acid. This is an example, and water molecule is extracted. Then we can oxidize these alkanes. We can burn this, simply we can burn this alkanes. जब ये burn होते हैं, हमने देखा पूरा C1 to C14 जो होते हैं, उसमें से कई सारे जो होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं. फ्यूल्स मतलब जो जलने के बाद हीट एक्सट्रैक्ट, जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एनर्जी देते हैं. ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस से ये एनर्जी बाहर देते हैं, जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं इन वेरियस थिंग्स. मे बी वी कैन यूज दिस एनर्जी इन साइड अवर बॉडी फॉर, यही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसमें अल्केन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट इनटू फूड होता है. वैसे ही ये जो फ्यूल्स होते हैं जो जलते हैं, LPG, CNG और पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर द फ्यूल्स बर्न्स, ये फ्यूल जो होते हैं, ये फ्यूल जलने के बाद दैट मींस ऑक्सीडाइज होते हैं. It combines with oxygen and forms carbon dioxide and hydrogen, but it emits a large amount of energy. ये बहुत ज़्यादा energy इसमें देते हैं. So the energy which is released in burning of methane is just
1 molecule of methane will release -212 kilocalories of energy. ये बहुत सारी एनर्जी देते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज फ्यूल्स. नाउ the next is pyrolysis and cracking. अब ये pyrolysis and cracking क्या होता है? The thermal decomposition of any organic compound is called as pyrolysis. अब pyrolysis क्या होता है? Suppose I have a compound with C18 suppose, ठीक है, C18 वाला कंपाउंड है, मुझे बनाना है पेट्रोल, क्योंकि मुझे डामर को तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, वैक्स को तो ज्यादा काम आता नहीं है, तो मैं इतना सारा वैक्स बना के करूंगी क्या? बिजली जला रहे हम, कैंडल्स तो काम आते नहीं है ज्यादा, तो इतने सारे वैक्स को मैं क्या करूंगी? वैक्स तो मेरे काम की चीज नहीं है. पेट्रोलियम जेली कितनी काम आ जाएगी? तो अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पेट्रोल और डीजल. तो अब ये बाकी के जितने भी आगे का मटेरियल है, दैट मीन्स बड़े वाले जो कार्बन है, इसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं into 2 parts 3 parts. इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं कि हमको यूजफुल वाला मटेरियल मिलना चाहिए. तो यूजफुल मटेरियल हमको मिलना चाहिए, तो इस तरीके से हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो हम पेट्रोल और डीजल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल मिल सके, क्योंकि वही जो दो चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा काम आती है हमको, क्योंकि बहुत सारा पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है. तो वी ट्राई ऑल द हायर एल्केन्स टू कन्वर्ट मैक्सिमम इनटू दिस पेट्रोल एंड अल्केन्स. तो हम क्या करते हैं? इसको ब्रेक डाउन करते हैं. दे आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज मे बी पेट्रोल और मे बी डीजल और मे बी एलपीजी सीएनजी. तो हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग. ओके, पायरोलिसिस होता है, डीकम्पोजिशन होता है, जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस. ठीक है, जो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है. अब ये जो अल्केन्स में जब स्पेशली पायरोलिसिस करते हैं, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग. है, ये क्रैकिंग हम करते हैं. जो क्रूड ऑयल निकलते हैं उसको पहले क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि जितने हायर अल्केन्स है वो हमारे यूजफुल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसको सेपरेट आउट करते हैं. तो दिस क्रैकिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज थर्मल क्रैकिंग, जो कि हम हीट करके करते हैं. जब हम इसको हीट करते हैं तो दे डिकम्पोज्ड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमने हीट किया, ये कैसे भी किस तरीके से भी चेन टूट सकती है. जरूरी नहीं है कि मुझे C7 चाहिए तो मुझे C7 ही मिलेगा. ये तो चेन को किसी भी तरीके से तोड़ सकता है. C1 भी मिलेगा, C3 भी मिलेगा, C5 भी मिलेगा. ये जो थर्मल क्रैकिंग होता है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है. तो वी यूज कैटालिटिक क्रैकिंग. अब ये जो कैटलिस्ट हम डालते हैं, तो कैटलिस्ट इस तरीके के डालते हैं कि हमको स्पेसिफिकली वही मटेरियल मिलता है. अगर मैंने C18 को ब्रेक किया तो मे बी मुझे C7 प्लस C जो भी रिमेनिंग पार्टिकल है वो मिलेगा. तो मैक्सिमम मुझे C7 मिल रहा है, विच इज यूजफुल फॉर मी, आई कैन यूज दिस. तो इस तरीके से मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ कि वो मुझे वो स्पेसिफिक जो मेरे काम का मटेरियल है वही मुझे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिलना चाहिए. सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्रैकिंग. थर्मल क्रैकिंग, this is good method, but this is not specific. Catalytic cracking is more useful because we can get the desired material from this catalytic cracking. Okay, so thermal cracking we have already seen कि 400 above 400 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसको हीट करते हैं तो they gets broke down into the carbon bonds जो होता है वो break down होता है, but it can convert. अब catalytic cracking जो होता है, catalytic cracking में क्या होता है? When we heat this, alkanes are heated at the higher temperature in the presence of catalyst. जब हम इसको catalyst के presence में ये करते हैं, in the absence of air और oxygen, क्योंकि अगर air और oxygen के form में हम उसको heat करेंगे तो that will convert into oxides, तो ये फ्यूल जल जाएगा. ओके, जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट करते हैं तो ये क्रैकिंग होता है. मतलब दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द लोअर अल्केन्स. ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू लोअर अल्केन्स, और ये बर्निंग नहीं होता. ओके, so for example higher boiling point alkanes are cracked by thermal or catalytic cracking to give the shortened carbon compounds. So अगर हम ये देखते हैं कि ये अल्केन है जो C10 है,
हम इसको जब इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको अंडर कैटलिस्ट जब हम क्रैक करते हैं, दे आर डिफरेंट कैटलिस्ट यूज्ड, डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट रिजल्ट. अब ये कैटलिस्ट के नाम होते हैं, बट वी डोंट हैव टू सी इन दैट मच डेप्थ, तो आपको जस्ट कैटलिस्ट लिखना है. ओके, तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं, यू कैन सी दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, ये C5 बन गया, C8 C2 बन गया, C2 C8 बन गया, या अल्केन्स अल्कीन्स बन गया, और ये अल्केन्स अल्कीन्स अल्कीन्स ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में we can broke down into different smaller hydrocarbons. Okay, so this process is called as cracking.